टेल मी द फाइनल सॉल्यूशन और एल्स आई एम डूइंग। आपके पास है तो जरा मुझे देखिए, करते जाइए, देखिए क्या करना है। स्टेप एक नंबर मिनट सर, 1 बोल रहा इज था, बुक निकाल। नो। जी सर। जी सर, बोल रहा था। गिवन इट्स फाइनल आंसर टेल मी। एफ ऑफ लॉग। लॉग में नहीं है बॉस आंसर, मैं कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। लुक एट दिस गिवन इक्वेशन इज दिस वन। We take this is your equation number 1. Comparing with PP plus QQ is equal to R, which is our standard form. So then it is P is equal to XZ, Q is equal to YZ, and R is equal to X bar. What is the next step? What is the next step? The auxiliary equation of कैलकुलेशन इक्वेशन dx by equation number p 1 is equal to is dv dx by p capital P is equals to equal to dy by q. capital Q is equal to dz by capital R. You just plug in the values. Dx by P value is XZ is equals to dy by q value is yz is equals to dz by r value is x. Okay. Now take this as equation number 2. We take the first two terms of equation number 2 for grouping method. Taking first two terms. First two terms of dx equation number 2. So what you are getting? Tell me. Dx dx by by dz xz xz is equals is to equal to dy by dyz. yz. What happened here is, what you have done here? What you have done The here? z cancels, sir. Z will be cancelled. Now it is automatically dx by coming to the variable dx by x is dx equals to by dy x by dy by y. dy Okay, by y. you can bring that side and integrate it. Yes, sir. Integrating with respect to x. No, just write down integrate it with respect to x mention नहीं करना. Integration 1 by x dx minus taking this side, it is 1 by y dy is equals to some constant term is there, but we should later on, it is log x minus log y is equal to the constant term should be also taken in terms of log only. Log C1. Log A minus log B is log A by B is equals to log C1. Constant को भी log के terms में लिख रहे हैं. Log and log cancel. X by Y is equal to C1. It is your first solution. If you want, you can call it as A also. First solution आ गया. Now we required one more जी सर। solution ना B value. आपको भी same आए? You getting the same? जी सर। आप कुछ log कुछ बोल रहे थे?
लॉग हाँ कैंसिल हो सर, जाएगा। हम लॉग वो फॉर्मूला नहीं लिखे सर, उसका फॉर्मूला याद नहीं था हमारे। नेक्स्ट, नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं कर रहा हूँ। ओके, जी फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। व्हाट सर, हैपन? थर्ड इक्वेशन कौन सा है सर ये? ये थर्ड इक्वेशन नहीं है अपने पास, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ये वाला एंड दिस वन। जी जी जी। डी फर्स्ट एक्स एंड, बाई एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई एक्स वाई। तो राइट डाउन हियर, dx by डी xz एक्स बाई is एक्स equal जेड इज इक्वल टू to डी जेड dz बाई एक्स वाई। by xy. Now you see what happened here. Any term cancel, any term नहीं cancel. हो रहा सर। एक्स एक्स कैंसिल। Yeah, x cancel, x cancel. Hmm, और अदरवाइज आप इसको अगर x कैंसिल भी करें तो टर्म्स मैच नहीं करे, तो अपन इसको ऐसा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड डी जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई क्रॉस एक्स मल्टीप्लाई। जेड डी। यहाँ पर देखो, अ, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है आपके पास, एक्स वाई की वैल्यू सी है ना, तो वो इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। कैसा लिखेंगे यहाँ पर, देखिए दैट सिंस एक्स वाई वैल्यू is c1, this implies I can get the value of y value अगर होना है, so then it is like that, x by c1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके y को सब्जेक्ट बना, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, ये प्लेस को। तो कैसा बन जाता अपना क्वेश्चन, बोलो। अल्टीमेटली b का सोल्यूशन लाना है, x इंटू जी सर। y की वैल्यू क्या है, x by c1 एफ बाई बस ई वन। into dx into dx is equal to x z dz. Now cancel this x. It is the correct time to cancel x here, x here, right? Then what happened? Then what happened here is x by c1 एक्स बाई सी वन इंटू डी dx एक्स इक्वल टू जेड डी एक्स। z dz। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ x आ गया, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट है, x dx है, z dz है, सेम वेरिएबल। जैसे ही आते कि अपन क्या करते हैं इसको, व्हाट वी आर डूइंग, वी जस्ट सर वहाँ इंटीग्रेट। पे ऊपर जेड डी डी एक्स लिखे थे सर आप पर। हाँ, ये राइटिंग मिस्टेक है, दिस इज राइटिंग मिस्टेक, विल रेक्टिफाई द मिस्टेक। अच्छा, यहाँ भी है नहीं, dz आना, x and x cancel, बराबर। नाउ जी सर। integrating, once if you integrate, c1 is a constant, x integration is x square by 2, c1 as it is equals to z integration is z square by 2, and that arbitrary constant what we are adding, that is called c2। ठीक है, टी टू। this 2 and this 2 also cancel, right? जी सर। नेक्स्ट पेज में करेंगे, कंटिन्यू, x square बाई by टू c1 is equals to, क्या है यहाँ पर बोलो, इज z इक्वल square टू plus c2, जेड स्क्वायर बाई टी टू। z square plus c2। बट ऑलरेडी c1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, c1 की वैल्यू x बाई सी है ना, यहाँ पर है, बाई बाई। जी एक्स सर। बाई वाई यहाँ पर यूज करिए, एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई वाई is equal to z square plus c2। This one brings to the numerator x square y by x
is equal to z square plus c2. One is square term and one is x term cancel. So what happened here is xy, and this one if you bring that side minus z square minus minus z square is equal to dot c. c is equal to c. The complete solution is the complete solution is मैं इसको इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. You will get the question in this type, confirm question. A comma B is equal to 0. This is f of our A value is x by y, comma our B value is xy minus z square is equal to 0, which is your final answer of this question. Hope you understand. देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से. Want to see? Look at that. देख लीजिए एक बार. या सर tell me आपकी sir. आवाज कट हो गया है सर. आप बार बार ज्वाइनिंग रिज्वाइनिंग कर रहे तो कट होती ना. Yes, we continue next topic. जी सर. It is homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients. Homogeneous linear partial differential equation with constant coefficients. तो क्या है टॉपिक और उसके प्रॉब्लम्स आए तो आपको एग्जाम में कैसे करना है वो एक बार देख लेंगे. मैं थोड़ा बेसिक से जा रहा हूँ. एन इक्वेशन इसको बोलते हैं होमोजेनियस. वो बेसिक से बता रहा हूँ. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज dou power n z by dou x power n plus some constant term that is still k1 dou power, it will be decreasing, n minus 1 by dou x power n minus 1 into dou y, okay, plus and so on, plus kn dou power n z by dou y power n. x से स्टार्ट हो गया y तक जा रहा. देखिए सपोज द राइट साइड वैल्यू इज f of x कॉमन. ये पूरा जो टॉपिक है आपके m2 से रिलेटेड है. is called is called अब आ रही है बस. जी सर. होमोजेनियस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ. लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth order with constant coefficient. Constant coefficient.
अब इसको अगर अपन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, द, कभी कभी क्वेश्चन आपका सिंबॉलिक फॉर्म में भी रहता है, द सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर देखो, डो बाई डो एक्स की प्लेस पे कैपिटल डी को यूज करते हैं, which is called symbolic form. So then if you convert this into the symbolic form, it will become, and y को कॉमन, z को कॉमन भी ले लेंगे, d पावर n प्लस के वन d पावर n माइनस वन इंटू डी डैश, यहाँ पर डी डैश का मतलब है डो बाई डो वाई। ठीक है, ये याद रख लीजिए, अब आगे काम आने वाला है। कैपिटल डी का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, आगे काम आने वाला है, देखिए यहाँ, एंड सो ऑन, प्लस के एन इंटू डी डैश एन ऑफ, from this all we have taken z comp, and this is equal to f of x comma y। सिर्फ और सिर्फ अपन क्या करें, डो बाई डो एक्स की प्लेस पे कैपिटल डी, डो बाई डो वाई की प्लेस पे डी डैश वाई के लिखे। ठीक है, तो अपने को असल में इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहता, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसका देखो नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड, टू फाइंड सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं डिनोटेड विथ जेड सी। तो क्या करना, जहां पर भी कैपिटल डी है उसको स्मॉल एम से रिप्लेस करना, तो देन व्हाट हैपन हियर इज, कैसा बन जाएगा, एम पावर एन, राइट ना, प्लस, बोलो क्या बनता, के वन इंटू एम पावर प्लस के एम पावर एन माइनस वन, एन और माइनस यहाँ वन। पर अपन ये करते खुद डी डैश की वैल्यू को वन अज्यूम करना कभी, प्लस एंड सो ऑन, प्लस के एन, बिकॉज डी डैश तो वन हो गया, इज इक्वल टू जीरो, राइट साइड टू जीरो अज्यूम है। अब जब ये इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स कैसा आते और उसके आंसर्स को कैसा लिखना, वो आपको मेजर इंपॉर्टेंट है लिखने का, सीखने का। केस वन होता है, केस वन, if the roots are distinct, if the roots are distinct, मतलब अगर अलग अलग रूट आ रहे, if the roots are distinct, मतलब ऐसे रूट्स आ रहे, एम वन की वैल्यू अलग आ रही, एम टू की वैल्यू अलग आ रही, और एम थ्री की वैल्यू अलग आ रही, तीनों भी डिफरेंट डिफरेंट आ रहे, then the way of writing the solution is complementary function zc is equal to, कैसे लिखते देखो, एफ वन इंटू वाई प्लस एम वन एक्स। नेक्स्ट देखो, बोलो, आप बोलो, कोशिश करो, एफ टू, एफ टू प्लस एफ टू वाई 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 प्लस एम टू एक्स। यस, कभी करे क्या पहले, नहीं सर, नहीं सर। एफ थ्री एफ वाई प्लस टू वाई प्लस एम थ्री एक्स। एम थ्री एक्स, ये है आपका वे ऑफ राइटिंग सोल्यूशन। उसके बाद सेकंड केस, केस टू, अगर रूट सब सेम आ रहे हैं, मतलब एम वन एम टू एम थ्री के वैल्यू रिपीट हो रहे, इफ द रूट्स आर repeated, if the roots are repeated, it means that m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, m3 की वैल्यू, all the values are same, then the way of writing complementary function, देखिए जरा अच्छे से, तीनों सेम ही से, एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स इंटू एफ टू इंटू वाई प्लस अगेन एम वन एक्स, क्योंकि तीनों सेम ही है, एक्स के यस बाद सर। एक्स स्क्वायर लेना, एफ थ्री एफ थ्री इंटू वाई प्लस अगेन एम वन एक्स। अब चाहे तो पूरा में एम वन लिखो,
आप चाहे तो पूरा में M2 लिखो, आप चाहे तो पूरा में M3 लिखो, आपका मर्जी। ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का प्रोसेस। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखते, टू फाइंड। तो इस एक्स टी को इंक्लूड करा सर वहाँ पे। ये रिपीटेबल, रूट्स आर रिपीटेड। ठीक। रिपीट है तो यहाँ एक्स इंक्लूड होता, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इंक्लूड होता, राइट। टू फाइंड जेड पी, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब वो कैसे होते केसेस, उसका केस वन, व्हेन व्हेन अगर आपकी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो राइट साइड की वैल्यू है, ये वाली, ये वाली वैल्यू राइट साइड की वैल्यू, ये वाली, अगर वो ये फॉर्म में है, अगर आपका फंक्शन ये फॉर्म में है तो उसे e टू द पावर ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में है। तो आप उसको सॉल्व कैसा करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पुट कैपिटल डी इज इक्वल टू ए कॉमा डी डैश की प्लेस पे बी रखना। मतलब कैपिटल डी की प्लेस पे एक्स कोफिशिएंट रखना और डी डैश की प्लेस पे वाई कोफिशिएंट रखना, ठीक है। और इसका जेड पी कैसे फाइंड आउट करना, इट इज इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश इंटू ई पावर ए एक्स प्लस बी। तो प्रॉब्लम में अपन देख के ऐसा रिप्लेस करके करेंगे। तो देखेंगे केस टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए भी दो केसेस है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए तीन केसेस। केस टू, अगर आपके फंक्शन की वैल्यू मतलब राइट साइड की वैल्यू साइन या फिर कॉस फॉर्म में है, ऐसा है, कैसा है, साइन ऑफ एम एक्स प्लस एम वाई, ये एक हो सकता है, या फिर कॉस में हो सकता है क्वेश्चन। और ये पढ़ना, आप ये पढ़े तो क्वेश्चन आगे की क्लास समझ में आता है, एम एक्स प्लस एम, ठीक है। तो इसका जेड पी कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे करते हैं, वन बाई एफ ऑफ डी स्क्वायर कॉमा डी डी डैश कॉमा डी डैश स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई और और कॉस ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपन पुट, अच्छा देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम में काम आने वाला है। डी स्क्वायर के प्लेस पे क्या करना है, माइनस एन स्क्वायर, राइट। डी और डी डैश के प्लेस पे क्या करना है, माइनस ऑफ एम इंटू एन करना है। और डी डैश के प्लेस पे, डी डैश स्क्वायर के प्लेस पे माइनस एन स्क्वायर करना है। समझे ना, राइट साइड में अगर आपके क्वेश्चन में साइन या कॉस है तो ये रिप्लेसमेंट है, आपको सब्स्टिट्यूशन है। और एक थर्ड जी केस सर। होगा, तीन केस सही है। केस थ्री, केस थ्री में क्या है, अगर आपकी फंक्शन वैल्यू राइट साइड की वैल्यू कुछ इस तरह से है, ऐसा है, एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन फॉर्म में है। तो अगर आपको इसका जेड पी लिखोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो आप कैसा लिखोगे, वन बाई एफ ऑफ डी कॉमर डी डैश के फॉर्म में फंक्शन मिल जाता आपको, इंटू एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन। अब इसको आप क्या करना रहता, सीधा सीधा इसको न्यूमिनेटर में ले जाके एफ ऑफ डी कॉमर डी डैश, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें डी और डी टर्म्स रहते, डी डैश टर्म रहते हैं, उसको न्यूमिनेटर में ले जाके नेगेटिव कर देना और बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करना, एक्स पावर एम इंटू वाई पावर। ये तीन केसेस है, ये तीन केसेस और ये दो केसेस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये टोटल पांच चीजों को देख के अपने क्वेश्चन में मूव होना।
करेंगे पहला क्वेश्चन। जी सर। अच्छे से देख लीजिए, मैं पहले क्वेश्चन में मूव हो रहा हूँ। तो आप यहीं पे कर सकते हैं, क्वेश्चन जगह है। आ जाता है इससे। चलो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन करे तो आपको आइडिया होगा ये जो क्वेश्चन सिखाया है क्वेश्चन में कैसा इंप्लीमेंट कर। तो पहला क्वेश्चन है ये टॉपिक का। सॉल्व सॉल्व d² प्लस 4d d'। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑपरेटर फॉर्म में है, आपको ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत ये नहीं है। d'² ऑफ z इज इक्वल टू, अब ये पूरे चीजों का आंसर आपसे होना है। साइन ऑफ 2x+3। अब आइए बेसिक से। अब देखिए अपना क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म या फिर ऑपरेटर फॉर्म भी बोलते हैं, ऑपरेटर फॉर्म। तो ये फॉर्म में अपना क्वेश्चन है ना, डी के फॉर्म में। देखिए अपना क्वेश्चन डी के टर्म्स में है। जी सर। यस। उसके बाद इसको जब आप इसका जेड पी करेंगे तो अपन कौन से केस में है। अच्छा ये बात इसमें यहाँ पर और भी जगह है। ये वाले केस में सेकंड केस से अपन जेड पी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन इसका ठीक सोल्यूशन है सर। स्टार्ट, सोल्यूशन स्टार्ट। अच्छे से समझिए पूरे चीजों, पूरे बेसिक में बता दिया। स्टार्ट करेंगे। गिवन गिवन पार्शियल differential equation is, you have to write the question out again. D square minus v plus 4 d d dash minus 5 into d dash का square into z is equals to sin of 2x+3। इसके बाद अब यहाँ पर देखो क्या लिखे थे, सिंबॉलिक फॉर्म के बाद इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करके इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, मतलब डी को एम में रिप्लेस करता है। यह लिख के करें द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। तो कैसा करना बोला, मैं शॉर्टकट में आपको बताया था। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते वक्त ये डी के प्लेस पे एम करना, डी डैश के प्लेस पे 1 करना। तो करिए। जी सर। तो ये रेड पेन से मैं जो लिख रहा हूँ आपकी ऑप्शनल एम स्टेप है। आप चाहे तो नहीं लिखे तो भी ये चलता, मगर आपको समझने के लिए वहां पर मैं पिंक कलर से लिखा। तो ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन m²। एम एम स्क्वायर प्लस 4m m माइनस 1। फाइव -5 इज इक्वल टू 0। डी डैश की वैल्यू 1 है ना जी। हाँ सर। अभी मैं आपको ये भी बोला था ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते वक्त राइट साइड में 0 लेके करना, इसको पूरा 0 अज्यूम करना। तो अब इसके फैक्टर्स आ सकते हैं ना, मालूम है ना। ठीक है। फैक्टर्स लेने तो आपको कैलकुलेटर से भी कर सकते ठीक हो। बहुत सारे ठीक है। प्रोसेस है, आपको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आइए। एम इज इक्वल टू 1, -5 इसके रूट्स आर। और आप देख सकते हैं ये डिस्टिंक्ट रूट्स है, अलग अलग रूट्स आर। तो इसका आंसर लिखेंगे जी सर। अपन ZC। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे अपन F1 y प्लस our m1 value is 1 now, so 1x plus F2 into our m2 value is -5 now, so y -5x। -5। इसका ZC आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल करें ZP। और अपन ये वाले केस में कौन से, आई थिंक मैं नेक्स्ट पेज पे चले आता हूँ। ये वाले केस में यहाँ पर मैं वो मार्जिन बना देता हूँ, इसका ZP कर देता हूँ। देखिए ZP इज इक्वल टू कैसा करके बोलो, 1 बाई वन वन बाई बाई देखो मैं क्या बोला क्वेश्चन, D² एम। डी डी डैश ये फॉर्म में आता
तो ये डी ठीक है। स्क्वायर, डी स्क्वायर आपका क्वेश्चन है, प्लस 4 डी डी प्लस डी डैश प्लस डी डी डैश। माइनस 5 डी डैश स्क्वायर। ये है ना क्वेश्चन, देख लो एक बार, देख लीजिए यहीं से, है ना। हाँ साइन सर, ऑफ ये सर। साइन ऑफ 2x+3। चल अभी देखो प्रोसेस देखो, डी स्क्वायर की प्लेस पे माइनस एम स्क्वायर लिखो, माइनस एम, एक्स कोफिशिएंट को माइनस एम बोलते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें अपन। ठीक है, अब यहाँ पर मेंशन कर दो आप एम की वैल्यू 2 है बोल के, और एन की वैल्यू 3 है बोल के। यहाँ पर कंपेयर भी करें तो आपको पता चल जाएगा, देखिए आप, है ना। जी सर। अब डी स्क्वायर को रिप्लेस करें, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड एज माइनस एम स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द रूल, माइनस एम स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर, और ये -4 हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे डी डैश के पास, डी डी डैश की वैल्यू दैट इज माइनस इज ऑफ इक्वल टू एम इंटू माइनस माइनस फोर एम इंटू माइनस एन, दिस इज माइनस m value is 2 माइनस into माइनस 3, टू 2 इंटू into थ्री it सिक्स is minus माइनस 6। सिक्स इसके बाद d dash स्क्वायर की वैल्यू, दिस इज माइनस n स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फोर फॉर्म, फोर माइनस 3 स्क्वायर, इट इज -9। नाइन माइनस ये पूरे नाइन। वैल्यूज को लाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जी zp becomes 1 by d स्क्वायर की वैल्यू है -4 सर, वो प्लस, -3 स्क्वायर कैंसिल होता ना सर? क्या कैंसिल होता। माइनस कैंसिल होता ना, माइनस अरे इंटू मेरे माइनस प्लस भाई, होता ना? -3 होल स्क्वायर नहीं करा मैं सिर्फ -3 जी स्क्वायर करा। -3 होल स्क्वायर करे तो 9 होता, ये -3 स्क्वायर बोल तो -9 होता। ये स्क्वायर जो है ना, रियल नंबर पे भी है कॉम्प्लेक्स पे भी है, ये स्क्वायर खाली रियल पार्ट पे है, कॉम्प्लेक्स पे नहीं है, यही तो रूल है। समझे ठीक है। बात को आप, होल स्क्वायर नहीं होता, वो ठीक खाली है। रियल पार्ट पे स्क्वायर हो रहा। माइनस ठीक है। प्लस 4 इंटू -6, वैसे तो आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। -5 इंटू डी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, -9 आ इंटू साइन ऑफ 2x+3। इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जेड पी का जो आंसर आ रहा है, जेड पी इज इक्वल टू, करो इसको, 1/, -4 -4 प्लस -24 प्लस 45 कितना हो रहा है, कितना हो, 20 -4 20 20 20 -5 45। कैलकुलेटर लेके करो ना जी। सर है सर। 17 है सर। बराबर, जेड इज इक्वल टू जेड सी। हर बार अपने को ये पूरे यूनिट में कंप्लीट सोल्यूशन लिखना था, तो जेड इज इक्वल टू जेड सी की वैल्यू अपन यहाँ करें, f1 y+x, f2 y-x। एक काम करो, थोड़े से f1 y+x प्लस f2 y-5x, ये जेड सी की वैल्यू आएगी, प्लस जेड पी की वैल्यू 1/17 साइन 2x+3, 2x+, इसको बोलते हैं आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ये वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वाले टॉपिक में से, इसमें से होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता, ठीक। इसको अपन ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज कभी कभी क्वेश्चन ही ऑपरेटर फॉर्म में रहता, तो इसका अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल डी को स्मॉल एम से और डी डैश को 1 से रिप्लेस करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है आपको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसके रूट्स निकालना है। उसके बाद अगर रूट्स रिपीट हो रहे
तो ये फॉर्म में इसका आंसर लिखना, रूट अगर रिपीट नहीं हो रहे तो ये फॉर्म में इसका आंसर लिखना। इसके बाद राइट साइड वैल्यू को देख लेना। राइट साइड वैल्यू ई पावर ए एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में है तो ये रूल अप्लाई करना। और अगर राइट साइड की वैल्यू साइन और कॉस फॉर्म में है तो ये वैल्यू अप्लाई करना। राइट साइड में एक्स पावर एम इंटू वाई पावर एन है, तो न्यूमिनेटर में ले जाके बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको सॉल्व कर। ये तीन केसेस पर्टिकुलर इंटीग्रल करने के लिए, और दो केसेस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करने के लिए। और ये वाले क्वेश्चंस, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में शायद कहीं देखा मैं, तो वो हिसाब से मैं इसको सॉल्व कर दिया। आप इसको देख लीजिए, एक और क्लास अगर इस पे रखे आप तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। कौन सा टॉपिक चल रहा है? बोले, नाम बोले। ये होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। है ना सिलेबस में आपके? नहीं सर, हमारे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं है सर। अरे बाबा, पढ़ो सिलेबस आप। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। हाँ। फर्स्ट होमोजीनियस ऑर्डर नहीं। पार्शियल डिफरेंशियल होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस नहीं है। नहीं है सर। आपको फोटो भेजो सर आपको। अरे भेजो फोटो, भेजो। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों भी है सिलेबस में। क्या बात कर रहे हो? होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस दोनों भी है अपने सिलेबस। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये है ना जी, पर है ना। अब देखो स्टार्टिंग सिलेबस में देखो, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, यही तो है वो। नहीं सर, आप होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस बोले तो वहाँ कंफ्यूज हो हाँ। गए। नहीं, इसमें फर्स्ट ऑर्डर में दो अलग अलग आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में होमोजेनियस को भी जी। सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर में नॉन होमोजेनियस को भी सॉल्व करना है। और अलग से फॉर्म अलग दिया आपको, लेग्रांजेस फॉर्म की नॉन होमोजेनियस। जी सर। हाँ, ये कंपलसरी एक स्मॉल क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। समझे जी ना? सर। पार्शियल ऑर्डर में दो है, एक होमोजेनियस है, एक नॉन होमोजेनियस। होमोजेनियस वाले एक जी और सर। क्लास अपन करें तो ये हो जाता। उसके बाद नॉन होमोजेनियस में फिर पांच अलग अलग मेथड से शो करके फिर लास्ट में अपन चार पिट्स के पास जाना रहता। ठीक जी है ना? ठीक है सर। राइट। तो ठीक है ये सर। यूनिट खत्म होता। ओके। जी सर। चलो, आपको टाइम भी मिल गया अच्छा खासा अभी। 12th में तो अच्छा खासा टाइम है, थोड़ा हाँ स्लो भी सर, जा अभी सकते हैं। एग्जाम है।